चलो तो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बाहर भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं. नाउ हियर वी हैव दिस किचन एरिया. सो इफ़ यू कैन सी दिस साइड, दिस इज़ द किचन. एंड जब हम लोगों को खाना मिलता है तो दिस इज़ द डाइनिंग एरिया गाइस. So now let's go outside guys. You can see how people are working over here. This is the basically the the part of villages. So ये अलग अलग चीज़ें हैं. अब ये क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम, कुछ अलग सी चीज़ दिख रही है, बट अगेन इट इज़ गुड. एंड आई थिंक ये मैंने देखा हुआ है, ये मुझे पता है. यहाँ पे क्या होता है कि okay, let us do one thing. Let us come to this side and then I will show you what exactly it is. I know about this particular thing guys. This is really good thing. तो यहाँ पे जैसा तुम देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है ना, तो इन लोगों के पास में लकड़ी और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को. तो ये उस टाइम तक पूरा बेसिकली पूरे साल इसको कलेक्ट करते हैं, कंडे, लकड़ियाँ एंड एवरीथिंग, एंड दे आर पुटिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो गाइज हम लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं पूरे ट्रैक में, एंड वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट ऑफ माउंटेन्स ओवर हियर. And the exciting part of this journey I can share over here with you guys is that I found here one couple where you will be finding like what is a kind of energy they have guys, and you will also be encouraged by seeing their journey. So let me just introduce over here. So hello uncle, how are you? Oh, fine. So uncle, can you just tell us something about yourself, like what is your profession and from where you are actually? Actually, me and my wife, Suchita, we are both doctors. Yeah. And also Shushmita. Yeah. she's Hello a ma'am. doctor. Hello ma'am. And we've been friends since college. Oh, great. And we love to travel. This Ladakh was a long time wish list. Was on the wish list. Okay. I've been here about 19 years back. Yeah, even auntie was telling me day before yesterday, like you people came here 19 years ago as well. But this time we wanted to focus on the Changthang plateau and the wildlife around here. Correct. So it was a wonderful experience. So your journey 19 years ago and this time, like what you are finding difference over here? Lots of differences, like new buildings, more people, more tourists. The facilities have improved a lot. Correct. And the mindset, like see, when suppose if I'm just talking about right now, 19 years ago you guys were on my age. So what was your mindset that time, excitement level and all those things, and the excitement level today, is it the same thing or it is much higher than that time? The expectations are definitely more, but age is also catching up. We are finding it taking a bit more time to acclimatize and all, but we are enjoying it. Yeah. Going slow and enjoying it. Thank you very much. Thank you, auntie. Auntie, can you just tell us something about yourself as well? This is my third visit to Ladakh. The first time I visited, I think it was in 2004. So that time I visited all the usual touristy places like Nubra Valley and Pangong. Last year I went to Zaskar and even trekked to Phuktal Monastery. So this time I'm back for this Changthang Plateau. Okay. So Yeah, thank you very much auntie, and thank you very much uncle. Thank you. And hope you have a great journey back home. Yeah, definitely. Same to you as well. Yeah, thank you. अभी हमारी पूरी टीम जो है 11-12 लोगों की, वो लोग उमलिंगला चले गए हैं. आज यार हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी. जो नाजरे की हालत देखी उसके बाद ऐसा लगा कि यार समटाइम्स इट इज़ बेटर टू क्विट रादर देन टेकिंग ऑलवेज द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग. अब अभी हम लोग यहीं पे हैं हालने में. अब कोई था नहीं इधर, एंड पूरा विलेज एरिया है. पूछते आए तो यहाँ पे एक
मिलिट्री कैंटीन मिली है खाने के लिए। दिस इज़ द मिलिट्री कैंटीन गाइस। यहाँ पे सारा खाना एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो है वो मिलिट्री व मिलिट्री के थ्रू ही पूरा मैनेज किया जाता है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है यार खाने में, एंड अकॉर्डिंगली काम चलाना पड़ेगा। अब कुछ किया तो जा नहीं सकता है, बहुत आउटर एरिया में है, यू कैन से दिस। चलो लेट अस गो इनसाइड नाउ। क्या मिला भाई, कुछ करा ऑर्डर? राजमा राइस है, फ्राइड राइस है, चाउमीन है, हाँ और मैगी, मोमोज, ये चाउमीन। आज हानले में सिर्फ एक ही थॉट दिमाग में चल रहा था कि एक तरफ मंत्रों की गूंज, दूसरी तरफ तारों का राज। यही तो मिलता है हानले में ज्ञान का सुकून और विज्ञान का आकाश में। ये है मोनेस्ट्री जो हम लोग अभी यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हुए हैं। सो इट्स अ वेरी बिग मोनेस्ट्री गाइस, वेरी बिग मोनेस्ट्री। सो रोहित एंड मैं दोनों यहाँ पे आए हुए थे। सो आई थॉट some introduction should be given over here. So let's see, let us go inside and explore. इन बच्चों की मुस्कान और वो मीठी मीठी बातें, ऐसा लग रहा था कि बस इनको सुनते ही चले जाएं। यहाँ से ऊपर आसमान को देखा तो लगा इंसान छोटा ज़रूर है पर उसके सपने आसमान से भी बड़े हैं। ये वही जगह है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेटरी खड़ी है, जहाँ से मिलने वाला डेटा नासा तक पहुँचता है। सोचो, इस छोटी सी पहाड़ी बस्ती से पूरा ब्रह्मांड समझा जा रहा है। एक तरफ मोनेस्ट्री की घंटी बज रही थी और दूसरी तरफ टेलीस्कोप आसमान देख रहा था। ज्ञान और विज्ञान दोनों एक साथ एक ही आसमान के नीचे। सो गाइस, घर का खाना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हानले में हमें ये सब मिलेगा, बट रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इतने दिनों से हम जो भी खाना खा रहे थे किसी होटल में या किसी आउटसाइड कहीं पर भी हम लोगों को जैसा भी जो भी मिलता था, बट दिस इज़ द कंप्लीट फूड दैट वी वर रियली मिसिंग। और इसको देख के वाकई में घर की याद आ गई। चलो तो एंजॉय करते हैं। हमारे साथ में एक नया मेहमान। ओहो, कम ऑन, अरे वाह, ओहो। सो गाइस, यहाँ पे हम देख रहे हैं मिल्की वे, एंड रात की वजह से आपको दिखेगा नहीं। रात और भी गहरी हो गई थी। मैंने कैमरा आसमान की तरफ मोड़ा और जो तस्वीरें सामने आईं वो सिर्फ फोटोज़ नहीं थी, वो गैलेक्सी के राज थे जो आँखों से नहीं दिल से दिखते हैं।
हानले की वो रात अब भी यादों में है, तारों से भरा आसमान और ठंडी हवाओं का सुकून। सुबह हमने वापस लेह की राहों का सफ़र शुरू किया और शाम तक फिर से पहाड़ों के बीच अपने होटल पहुंच गए। वहां हमने देखा लद्दाख का फोक डांस फॉर्म, जो लद्दाख के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। Videographer, photographer and everything. Next year complete. Yeah. Done. All team is great. ये थी मेरी लद्दाख की कहानी, एक सफ़र जहां हर मोड़ ने कुछ नया सिखाया। अब आप बताइए, आपको लद्दाख का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आया? और कमेंट में लिखिए इंडिया के किस कोने को हम अगला एक्सप्लोर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।